जय हिंद और जय श्री राम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आनंद रंगनाथन, ये संसद अब इनका हुआ। जीएसटी ऑल्सो विल गो टू द वक्फ बोर्ड, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। प्लीज रिस्पॉन्ड. Good evening, Navika. Let me break some news to you. If it belongs to the waqf, प्रधान साहब, this is very unbecoming. देखिए, अब आपने वक्फ से मेरा घर ले लिया, मेरी जबान मत लीजिए प्लीज। मेरी जबान भी वक्फ की है क्या? प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। Navika, good evening. Look, let me break some news to you. 3 years ago, I investigated. Forget about the parliament, Navika. The studio where you are is on waqf land, so you might have to vacate that as well. But look. First, a 1500-year-old temple in Tamil Nadu. अब मुझे रेंट देना पड़ेगा इस कुर्सी का अबू आजमी साहब को। 100%. But look, Navika, the reality. Let me break it to you. First, a 1500-year-old temple in Tamil Nadu, then an entire village in Bihar, and now nothing less than the Indian Parliament has been claimed by Waqf to be on its land. The day is not far when from Peshawar to Plassey, the subcontinent would be united again as one nation under Waqf. This is unbelievable. We have the draconian Waqf Act that has usurped tens of thousands of acres of government, personal, even temple land, and we only want to amend this act. Unjust, discriminatory, draconian acts are not amended, Navika. They are abrogated. Do not amend the Waqf Act. Abrogate it. World over, disputes over property are settled using existing laws that are community and religion agnostic. Why should a particular religious community be armed with another set of laws, those that are patently discriminatory towards members of other community as a primary instrument of defense, or indeed, as we are seeing, offense? Is there a Hindu equivalent of the Waqf Act? Promulgate one then, in interest of equality. Let those who want continuation of the Waqf Act watch as Hindus lay claim to thousands of mosques and Muslim villages and enjoy the privilege of the disputes being addressed primarily not through the courts, but via the clauses and strictures of the Hindu equivalent of the Waqf Act. Will the government do this? No. Amending the Waqf Act, Navika, is akin to chopping the head of a hydra. This is because while you might have removed, yes, good thing done, removed a few discriminatory and draconian clauses from the act, a vast majority of them remain untouched. Let me give you a few examples. Section 28, for example, it gives Waqf the power to order a collector to implement the decisions of the board. Section 8 says the state has to pay for Waqf survey. This is in direct violation of Article 27 of our constitution that says no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion of maintenance of any particular religion or religion denomination. Then there is section 101 that is not being changed. Says the survey commissioner, members of the board, every officer, every auditor of the board, and every other person appointed to discharge any duties imposed on him by this act shall be deemed to be public servant, as is understood by the Indian Penal Code. Now you know what happens when you touch a public servant, literally or metaphorically. Then there is section 54. It gives the power to declare you an encroacher. Waqf tribunal, Navika, just 30 seconds. Waqf tribunal decision can only be overturned by a long and financially draining legal process. The Waqf, Navika, is a parallel government being run by the state. In its board, it has its legislature. In its surveyor, it has its executive. And its tribunal, it has its own judiciary. If India is to be safe from becoming an Islamic republic, the Waqf Act shouldn't just be amended, it should be abrogated. Waqf Act doesn't just appease Muslims. The problem is it discriminates against non-Muslims. It is one of the reasons why Hindus are 8th-class citizens in their own country. So I say to politicians, 10 seconds, it is better to be a hero who is forgotten than to be a coward who is remembered. Do not be cowards. Do the right thing. Abrogate the Waqf Act. Well, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए, ड्रॉप हो, सबसे पहले आप लोग देख सकें वीडियो को और अपना राय व्यक्त कर सकें वीडियो के अंदर। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं टाइम्स नाउ में नाविका कुमार के साथ, और वारिस पठान और बीजेपी प्रवक्ता लोग और भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। आप लोगों को तो पता ही होगा, एक बिल 1954 में कांग्रेस लेके आई थी। उससे पहले
ब्रिटिश के लोगों ने भी ये बिल लेके आए थे, मुसलमान वक्फ बोर्ड नाम का एक बिल था, पर वो इतना ओवर रीचिंग और पावरफुल लॉ नहीं था। जब तक कांग्रेस के जो मिस्टर नेहरू जी थे हमारे, उन्होंने एक अजीबोगरीब बिल लेके आए ये, जो एक कम्युनिटी आप लोगों को पता है हमारे देश की, जिसने एक रिलीजियस आधार से एक देश मांगा। उस देश मांगने के बाद भी हमने इतना ज़्यादा पैम्पर किया है कम्युनिटी को कि उनको ऐसा पावरफुल लॉ दे दिया। ये 54 में नेहरू जी ने किया, उसके बाद राजीव जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने भी किया इस लॉ को स्ट्रेंथन, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन तो एंड में 13 में हुआ 2013। उससे पहले हमारे नरसिम्हा राव जी ने भी किया। नरसिम्हा राव ने इसलिए किया क्योंकि उनको अपना जो एक वोट बैंक था यही मुसलमानों का, इसको श्योर करना था। जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो गिर गया था और वो रोक नहीं पाए थे, तो फिर उनका जो सपोर्ट था मुसलमानों के ऊपर वो वेन हो रहा था। उसको श्योर अप करने के लिए नरसिम्हा राव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए, जिसके कारण हमारे जो मंदिर हैं जो अभी भी कब्ज़ों में हैं, उन मंदिरों को हम रिक्लेम नहीं कर सकते हैं लॉफुल तरीके से। उस लॉ को लेके आए। उसके बाद ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है इसको लेके आए। उससे पहले तो 1 लाख 2 लाख एकड़ का ज़मीन हुआ करता था इन लोगों के पास। अब आप लोगों को तो पता है कि ये जो इंडिया में जितना भी पब्लिक होल्डिंग लैंड है, उस लैंड में तीसरा सबसे बड़ा लैंड का होल्डिंग यही वक्फ बोर्ड के पास है। और इन होल्डिंग के का जो प्रूफ है वो भी नहीं है इन लोगों के पास। ये रेलवे का लैंड अपना लैंड बना देते हैं। ये जो अंबानी का घर है ना, उस घर को भी अपना लैंड बना रहे हैं। इनके एक आसाम के एक मौलाना हैं और एमपी भी रह चुके हैं, अजमल, उनका एक पार्टी भी है आसाम वाला, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं घुसपैठियों वाली पार्टी है। इस बार हार गई थी कांग्रेस से 2024 में। तब भी अभी एक इंटरव्यू में, न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि ये जो हमारा पार्लियामेंट है और बहुत सारी जगहें जो दिल्ली में हैं वो सब वक्फ बोर्ड का जगह है। और अबू आज़मी समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के एक मेंबर पार्टी के, और जो उद्धव ठाकरे हमारे उद्धव ठाकरे हैं उनका भी सपोर्ट करने वाले अबू आज़मी, वो भी बोल रहे हैं कि इंडिया का जो मेजॉरिटी ऑफ दिस लैंड्स हैं वो सारे के सारे लैंड पूरी तरह वक्फ लैंड है। और आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि जो जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान में गुलछर्रे उड़ा रहा है और उधर बहुत ज़्यादा गाली भी खा रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता चल रहा है अब इंडिया क्या अजाब अपने ऊपर लगा कर बैठा हुआ था। इंडिया में जितना तकरीर उसके ऊपर नहीं होते थे, जितना क्रिटिसिज्म नहीं होता था, वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो फिर वो बंदे ने बोला था, एक ट्वीट किया था, उसने बोला था कि पूरा का पूरा इंडिया इज़ अ वक्फ लैंड, तो फिर इस वक्फ लॉ अमेंडमेंट लॉ को हमको खारिज कर देना चाहिए। और ये वक्फ वालों ने केरला में क्रिश्चियनों का एक पूरा गांव है वो ले लिया, उसको वक्फ लैंड बोल दिया। बिहार में 95% हिंदू गांव है, उस गांव को भी वक्फ लैंड बोल दिया। 1500 साल पुराना टेम्पल एरिया है और विलेज है बहुत पुराना, उस पूरे एरिया को इन लोगों ने वक्फ लैंड बना दिया। और उस विवाद का तो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये सब कर रहे हैं ये लोग, और पूरे देश में जो एक अराजकता का माहौल है, ये किसी भी लैंड को जाके बोल देते हैं कि ये वक्फ लैंड है। और आनंद रंगनाथन इस वीडियो में बोल रहे हैं कि बीजेपी को इस लॉ को अमेंड नहीं करना चाहिए, इसको पूरी तरह खारिज करके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, पूरी तरह रिपील कर देना चाहिए। पर आप लोगों को तो पता है बीजेपी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर नाउ। उस टाइप का पावर नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास अभी बहुमत नहीं है, 1/3 बहुमत नहीं है। अगर समझो बीजेपी के पास 272 280 ऐसा कुछ सीट होता, मेजॉरिटी हो जाता, तो फिर बीजेपी वुड हैव बीन सो क्या बोलते हैं, मजबूर नहीं होते ये अपने जो ये सहयोगी पार्टीज़ के, जैसे नायडू और जेडीयू की, वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनका सपोर्ट भी अमेंडमेंट तक ही जा सकता है, वो रिपील करने तक सपोर्ट नहीं करेंगे वो लोग। उनका भी एक लिमिटेशन है, उनको भी लगता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, और नायडू जी को तो चाहिए ही चाहिए। पर नायडू के साथ एक और पार्टी है ना, जो जनसेना पार्टी है मिस्टर पवन कल्याण का, तो फिर वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नायडू का भी अभी ये जो
ढीला पड़ना वो ढीला नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको जेपीसी में लेके जाना पड़ा। अदरवाइज़ बीजेपी की पहले दूसरी जो 2 गवर्नमेंट थे 19 और 14 का, उसमें तो ऐसे रैम करते थे बिल्स को और पूरी तरह रैम करके अंदर लेके जाके उसको पारिश करके ही मान देते। पर इधर बेंड करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी की गलती थी कि बीजेपी को स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहिए था। इलेक्शन जब हो रहा था तो फिर ये सबका साथ सबका विकास, ये जो सबको एक साथ लेके चलने की एक नरेंद्र मोदी जी की गलती हुई थी। और हिंदुत्व का जो एजेंडा था उस एजेंडा को पकड़ा नहीं उन्होंने। उनको लग रहा था कि उनका जो राम मंदिर बना था उसका वेव होगा और जो डेवलपमेंट उन्होंने किया था उसका भी होगा, उसमें कास्ट का कोई वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, इंटरप्शन। वो गलती कर दिया, उस गलती के कारण 240 में अटक गए बीजेपी वाले। पर अभी भी धीरे धीरे बीजेपी के दिमाग में भी लग रहा है कि अभी हमको हिंदुत्व में ही चलना पड़ेगा और कटोगे तो बटोगे, वही हो रहा है। और इसलिए ये जो बिल है इसको रैम इन करके पास कर देना चाहिए इस विंटर सेशन में। उससे पहले जो महाराष्ट्र का इलेक्शन भी होने जा रहा है उधर भी कटोगे ही बटोगे तो कटेंगे, यही बोलते रहना चाहिए। और मिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये जो स्लोगन है यही बोलते रहना चाहिए। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पूरी तरह खारिज करना चाहिए। और अगर कोई प्रोटेस्ट करके रोड वोड ब्लॉक करने की कोशिश करे तो उनको लाठीचार्ज करके भगा देना चाहिए। इस टाइम जो शाहीन बाग में गलती हुई थी वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और ड्रॉप करने के टाइम आप देख सकते हैं वीडियो को। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद एंड